A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in today's our online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verse of Holy Quran. I'm request with you guys, please turn off your mic. Mr. Anwar, Adnan Anwar, please turn off your mic. जी सर। Okay, we हाँ सुन continue. रहा सर, बोलो। ठीक है, Okay, कंटिन्यू। continue the session. Mr. Adnan, please turn off your mic. ओके। we we are discussing about what component equipment do we protect at generating station, transmission line, substation, and at utilization distributing end, the kind of equipment that we being need to utilize protect from the losses, causes of faults. So we categorize different kind of sections in our session. So up till now, if you have any kind of question, you may ask and discuss the kind of queries. I will answer your question and resolve your queries if you have in your mind. Otherwise, I continue the session. So the second section after generation is transformer protection. So there are two types of category, not single. We can say are two transformer. There are many kind of transformer used at this end. Typically 11 kV transformer, 66 kV transformer, and 132 kV transformer, 22 kV transformer, 500 kV transformer. These are different kind of transformer that we need to protect from different kind of abnormal kind of short circuits, losses, symmetrical and unsymmetrical faults. So in this picture, there are only two transformers at the end generating station, at the end substation, that we need to prevent from fault. So typically we need to use a differential relays for protection purpose to save these transformer from different kind of faults. Further, a line protection. This is also a main theme in power system that we call a line protection. Line protection is an essential aspect in our system, which we call a transmission line. For transmission line, typically we use a distance relay for protection purpose to protect a transmission line from different kind of losses, different kind of faults, and prevent our transmission line of system from the mentioned kind of losses. So there are different kind of voltage levels: 765 kV, 500 kV, 220 kV, and 132 kV, 66 kV, and 11 kV that we need to study. So line protection, bus bar protection. For this prevention, we use bus protection relays and distance relay. Distance relay also called an impedance relay. So typically the second component is a capacitor protection. For the prevention of capacitor, we also need to use a protection aspect. Capacitors are connected in series and parallel combination to obtain the desired total capacitance of the bank. So the purpose of protect a capacitor to use in our substation, grid station, generating station kind of things, to maintain the capacitance as per the requirement. So for their protection, we also need to use the protection equipment. Either they are reclosers, circuit breakers, protection relays, etc. kind of things. For सर ये yes, एक्सक्यूज मी सर ये कैपेसिटर बैंक है फॉर जी पावर जी फैक्टर के लिए लगे हुए हैं। जी जी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इन्हें पावर फैक्टर के लिए लगाएं।
बल्कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है पावर फैक्टर के लिए, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें रिएक्टिव लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन रिएक्टिव लॉसेस को ओवरकम करने के लिए कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं ताकि कैपेसिटर इफेक्ट इंडक्टेंस इफेक्ट को ओवरकम करके पावर फैक्टर को बैलेंस कर दे। उस मकसद के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ बैंक्स में नहीं लगते, इंडिविजुअल ट्रांसमिशन लाइन टावर में भी कैपेसिटर्स लगते हैं। ठीक है। ओके, इसको रीड करें। हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान ब्रेक। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर प्रोटेक्शन के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन क्यूरी इन अप टिल नाउ, इफ यू प्लीज आस्क, and if you have any kind of question please ask. I will answer the kind of question, resolve your queries if you have in your mind. And if all the concepts and things are clear, then we continue today's session further. Purpose of capacitors, ऐसे ये वो बात हो ही गई, वैसे भी जो हम कर रहे थे, शंट कैपेसिटर्स राइज द वोल्टेज ऑन अ बस बार। शंट कैपेसिटर्स की वजह से जो वोल्टेज राइज है बस बार पे वो आपका बढ़ जाता है और लाइन टू दी हायर लेवल, दस हेल्पिंग कीप द वोल्टेज एट डिजायर्ड लेवल। ऐसे ये ध्यान में रखें, शंट इंडक्टेंस, शंट रिएक्टेंस, शंट कैपेसिटेंस, ये कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग। तो कैपेसिटर का जो इफेक्ट है जो आप अलग से कनेक्ट करते हैं या जो सेपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड केबल्स इस्तेमाल करते हैं 4 केबल्स स्पेसिंग के साथ, इन सब का मकसद आपकी शंट कैपेसिटेंस सिस्टम में इंसर्ट करना होती है ताकि आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ओवरकम कर दें और पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दें और वोल्टेज रेगुलेशन को भी इम्प्रूव कर दें जो दीगर लॉसेस का बायस बनता है, और आपको प्रॉपर और मुनासिब वोल्टेज मिले, कई गुना ज़्यादा या कई गुना कम ना मिले। ठीक, उस मकसद के लिए हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, दैट्स हेल्पिंग कीप द वोल्टेज एट डिजायर्ड लेवल, जो कि मैंने बात कही। सीरीज कैपेसिटर्स कैंसल आउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ लाइन। तो सीरीज कैपेसिटर जो आपके होते हैं वो कैंसिल करते हैं, ये भी बात मैंने कह दी आपको। thus making the line appear shorten increase load flow on the line, और इस मकसद के लिए जो shorten load flow होता है उस तरीके से वो इंक्रीज कर जाता है लाइन के ऊपर। फर्दर पर्पस ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करने का हम आते हैं प्रोटेक्शन जोन की तरफ। जो प्रोटेक्शन जोन, प्रोटेक्शन एस्पेक्ट्स, तो
जो मुख्तलिफ तरह के सेक्शंस होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है जोन, सेक्शन, लोकेशन के नाम से। तो इनमें 6 तरह के सेक्शंस, लोकेशंस बने हुए हैं जिनसे हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। प्रोटेक्शन जोन में जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर यूनिट्स लगे हुए हैं। तो अगर आप यूनिट जनरेटर, जो कि जनरेटर के सिंबल को रिप्रेजेंट भी करता है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसको इंटरलिंक करने के लिए बीच में एक प्रोटेक्शन का इक्विपमेंट भी लगा हुआ है, ताकि अगर यहाँ या यहाँ कोई फॉल्ट अगर हो तो उसको ये प्रिवेंट कर सके। उस मकसद के लिए हम यहाँ पे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगाते हैं। फर्दर उसके बाद ट्रांसफार्मर जोन यहाँ पे कनेक्ट है, और इसका मकसद ये होता है कि जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है लो वोल्टेज हाई करंट में, उसको हाई वोल्टेज लो करंट में ट्रांसफॉर्म करे। पावर रिमेन्स एट दिस सेक्शन एंड बिफोर एंड ट्रांसफॉर्मर आफ्टर रिमेन्स रेशियो पावर should be same and would be same and have to be same. So power transformer zone, after that we further कोई सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए। कोई बीच में सवाल हो तो मुझे इंटरप्ट करके पूछ लिया करें। आई वेलकम। सर ये जो सर ये ग्रिड स्टेशन में जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं जी, सर, वो सीरीज शंट होते हैं या पैरेलल शंट होते हैं, क्या होते हैं सर वो? देखें ये डिपेंड करते हैं। हम जब डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे लगाते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटर जो कनेक्ट करते हैं, वो कैपेसिटर की जो टोपोलॉजी होती है वो पैरेलल में कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस हमें 3 टाइम्स ज़्यादा मिलती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे जो टोपोलॉजी होती है वो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सॉरी, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन के एंड पे टोपोलॉजी जो होती है वो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स, और उसका मकसद ये होता है कि शंट कैपेसिटेंस क्रिएट की जाए, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव इम्पैक्ट होता है पावर फैक्टर और वोल्टेज लॉस को डैमेज करने के नतीजे में, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन का भी बायस बनता है, इन सबको ओवरकम करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक या कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट करने से ही नहीं आता सिस्टम में। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर मुझे कैपेसिटेंस क्रिएट करनी है तो उसका तरीका क्या हो सकता है, कोई बताएगा? बगैर कैपेसिटर के पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 220 या 500 केवी के सर्किट में अगर मुझे कैपेसिटेंस क्रिएट करनी है तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? कैन एनीबडी टेल मी? सर वोल्टेज बढ़ा के कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगी? नहीं सर, यानी जहन में एक बात है सर, ये वोल्टेज जैसे कैपेसिटर लगे होते हैं ना अपने ट्रांसमिशन लाइन में, तो सर ये जैसे कि कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो ये लोड जो होता है ट्रांसमिशन लाइंस का वो ऑब्जर्व कर लेता है अगर कैपेसिटर ऑन होते हैं। जी जी, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ जनाब, कोई बताएगा? बगैर कैपेसिटर के ये कि कैपेसिटेंस वो करना। जी जी जी, इसके बारे में बताएं। सर आप बताएं। मैं तो बताऊंगा ही बिल्कुल, लेकिन मैं इनपुट आपसे चाह रहा हूँ, मतलब बाकी लोगों से, कि आप लोग बताएं। सर वो जो एटीएस वगैरह बनता है वो तो सर डिस्ट्रीब्यूशन के साइड पे लगेगा। एटीएस क्या होता है? सर सर डिटेल में तो मुझे नहीं पता, बट सर उसमें ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए जो कैपेसिटर बैंक्स वगैरह लगते हैं। लेकिन सर वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड में मैंने सुना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड में सर लगते हैं। एटीएस सिस्टम समथिंग डिफरेंट, ऑटो ट्रांसफर स्विच कहलाता है वो, और दिस समथिंग डिफरेंट। अच्छा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, इफ यू हैव नो काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज म्यूट योर माइक।
will cause of noise in our session. अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं चीज़ें ढूंढ रहा था इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर की थी ये दिखाने के लिए। ये चीज़ देखें आप यहाँ पे, जी सर। इनमें ये गैप रखा जा रहा है, देख रहे हैं, ये 4 तारें हैं जो एक साथ जा रही हैं। 500 kV, बल्कि मैंने 1200 kV का सर्किट लिखा है। 500 मैंने सर्च कर लिया था, उसमें मुझे ज़्यादा कॉमनली मिला नहीं है। ये सर्किट एक तो सैग में जा रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि तीनों की सिमेट्री देखें, ये 4 केबल सिमेट्रिकल स्पेसर, स्पेसर कहते हैं ये जो 4 इसका एक्स बना हुआ है ना, स्पेसर कहते हैं इसको। स्पेसर के जरिए सेम सिमेट्री के साथ ये 4 तारें जा रही हैं, और ये पर फेस की 4 तार होती हैं, मतलब रेड, येलो, ब्लू, या फिर L1, L2, L3, कोई भी एक चीज़ कह लें इसे। इनकी सिमेट्री बिल्कुल सेम जा रही होती है इनमें। ये देखा है ना आप लोगों ने? देखा है ये? जी सर। जी सर। यस सर। जी सर सर, देखा है सर। जी, काफ़ी बच्चों ने देखा होगा बाईपास पे जो ये लगा हुआ है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की टावर जा रही है अपना NKI ग्रिड। NKI ग्रिड स्टैंड फॉर नेशनल कराची इंडस्ट्रियल ग्रिड जो है आपका, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके बिहाफ पे उसको कहा गया। ये बलूचिस्तान के रास्ते में आपको मिलता है। NKI ग्रिड से आपकी जामशरू ग्रिड तक जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, मेरे ख्याल में ये बनती है कुछ 1200-1300 किलोमीटर, 500 kV की जा रही है। उनकी जो केबल्स है ना, ये इस तरह सिमेट्री में जा रही हैं। ये ऐसे क्यों है भाई? ये चारों मिलके चली जाती, मतलब चारों गिठान बनते हैं, गिठान समझते हैं ना, ABC केबल जिस तरह हमारे आप अपने घर के पास देखें जो केबल घुमा हुआ जा रहा है ना, 4 केबलों का डिस्ट्रीब्यूटिंग का एक एरियल बंडल कंडक्टर, उस तरह भी तो जा सकती हैं ये ऐसे क्यों जा रही हैं? जी जनाब। आवाज कट गई। सर ताकि सर इसके शॉर्ट ना रिएक्टेंस हो कम जाए सर। करने के लिए इसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं, पे शॉर्ट हो जाएंगी ये। कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ नजर आ रहा है हाफिज साहब? ये टावर बेचारे कंगले हैं, किसी के पास कैपेसिटर नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? कहीं कहीं नजर आ रहा है कहीं पे कैपेसिटर? सर स्टार्टिंग में इसमें नहीं है सर, स्टार्टिंग पॉइंट में होगा। नहीं, वहाँ कैपेसिटर फिलहाल नहीं सर है। ये 400 mm का सिंगल सिंगल होती है ना सर, 400 mm की, तो ये जी। 4 मिलके 1600 mm हो गई, तो इसमें लोड कैपेसिटी कैरी करने के लिए हो सकता है, एक नहीं वजह नहीं ये भी हो सकती नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं है, बिल्कुल गलत है ये चीज़ तो। कोई और बताए ये क्यों भाई ये चारों तारें मिलके चली जाए ना, जैसे हमारे घर के पास से गुजर रही हैं, आपके घर में डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे मीटर में लगी हुई हैं तारें, ऊपर से जा रही हैं कनेक्टर से लग के, वो एरियल केबल केबल की तरह ये 4 तारें जैसे वो जा रही हैं, ये भी चारों बनती हैं एक साथ, जैसे ABC केबल की तरह चली जाती, लेकिन ये ऐसे लगी हुई हैं। कोई और लॉजिक बताएगा इसकी? सर एक लॉजिक और है सर। जी जी। सर ये हो सकती है सर, अगर चारों मिला देंगे तो सर इसमें हाई टेंशन की लाइन है सर, तो स्पार्किंग बहुत ज्यादा होगी, कोरोना इफेक्ट होगा, फिर सर इसमें लॉसेस वगैरह भी हो सकते हैं। ये बात तो मुझे पढ़नी पड़ेगी, ये बहुत मेरी नॉलेज से भी बियॉन्ड है ये, होना इफेक्ट और आर्किंग सर स्पार्किंग। आप बेसिकली जी। आप सर सवाल दोबारा कीजिएगा 1 मिनट से। अच्छा, मुझे 1 मिनट दें मेरा। जी जनाब, तो सवाल ये है कि जैसे मेरे घर के करीब में ABC केबल गुजर रहा है, वो 4 तारों के अंदर है, उसमें रेड येलो ब्लू न्यूट्रल होता है, उससे मेरे घर में सप्लाई आती है, आप सबके घरों में सप्लाई आती होगी, एरियल बंडल कंडक्टर कहते हैं उसे। वो 4 तारें बिल्कुल घूमी भी होती हैं आपस में मिली हुई, लेकिन ये तारें ना बिल्कुल जुदा जुदा सेम सिमेट्री स्पेसिंग की हैं, और अगर पीछे से देखें तो बिल्कुल सेम सेम मिली हुई इसमें, और फिर इससे अगले टावर में जा रही हैं। ठीक है, सिमेट्री देख रहे हैं, चारों तारे एक दूसरे डिफरेंट है, लेकिन ये एक फेज है, ये पूरा रेड, ये चारों की चारों तारे रेड फेज है। ये चारों की तारों जो तारे हैं ये येलो और ब्लू, ये इस तरह की हैं। सवाल ये है कि ये मिली हुई क्यों नहीं जा रही, अलग अलग जुदा जुदा स्पेसिंग के साथ क्यों जा रही है, और इसके बीच में जो क्रॉस है उसे कहते हैं स्पेसर। स्पेसर के जरिए से सेम सिमेट्री की तारें जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं आपस में। सर इनके वोल्टेजेस सेम है। इनके वोल्टेजेस
हाँ सेम है भाई, ये एक ही केबल है, सिर्फ स्पेसर के साथ जा रही हैं। ये चारों में से रेड फेज गुजर रहा है, येलो ब्लू फेज गुजर रहा है, लेकिन ये मिली हुई नहीं जा रही। सर ये जहाँ चारों वायरें जिस जगह जाके कनेक्ट होंगी तो चारों एक ही जगह कनेक्ट, ठीक है सर। और बिल्कुल। चारों जाहिर सी बात है ये होंगी भी पैरेलल में कनेक्ट होंगी, सीरीज में तो होंगी नहीं, ठीक है सर। और चारों से जो मिसाल के तौर पे जो टोटल लोड अगर मिसाल के तौर पे 1000 हमारा एम्पियर है, तो चारों वायर में से ढाई सौ एम्पियर गुजरेगा लोड। सही है सर। तो सर ये फील्ड जनरेट होगी सर। सही। अच्छा हम सर मुझे जी ज्यादा अंदाजा जी सर पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा शायद सुना है। ये मेरे ख्याल से जो आपके हवा की फ्रिक्वेंसी होती है ना उस साइड से, मतलब मुझे सही अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये फ्रिक्वेंसी उसको बैलेंस करने के कुछ काम आता है इस तरह, मतलब मुझे कोरोना सही। इफेक्ट की वजह से होता है क्या सर? नहीं, कोरोना इफेक्ट समथिंग डिफरेंट है, उसमें कोरोना इफेक्ट ये चीज़ नहीं होती, कोरोना का इससे इम्पैक्ट डिफरेंट है, कोरोना में इसका ताल्लुक नहीं है। कोरोना इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में ही पढ़ाया जाता है। इसका मैं वजह बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत पहेली हो गई है। देखें, हमने मैट्रिक के अंदर 8 क्लास के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एक ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। सर वो एयर डाइलेक्ट्रिक है, समझ गए सर। जी जनाब, एयर इसमें डाइलेक्ट्रिक है, और ये एक ही फेज की, एक ही तारों के दरमियान जब हम उसे स्पेसर से गुजारते हैं तो इस सिंगल फेज के अंदर कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है। समझ आ रही है बातें? तो इस मकसद के लिए स्पेसिंग रखी जाती है कि इतनी बड़ी 1300 किलोमीटर की लाइन, 1200 किलोमीटर की लाइन, जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन नेशनल ग्रिड की चल रही है, ये सिर्फ मैंने आपको एनकेआई ग्रिड से, जो हमारे यहाँ लगा हुआ है नेशनल कराची इंडस्ट्रियल के ग्रिड पे, जिसको सप्लाई मिलती है आपको पावर प्लांट बलूचिस्तान से और हॉक्सबे कराची से इसे सप्लाई मिलती है एनकेआई ग्रिड से, और एनकेआई ग्रिड से जामशोर ग्रिड तक जा रही है, और इसका जो फासला है वो 1350 किलोमीटर है। तो इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो कि पूरे के पूरे नॉर्दर्न बाईपास पे चल रही है, कहीं पर भी कैपेसिटर लगा हुआ नज़र नहीं आएगा आपको एक्सटर्नली, क्योंकि कैपेसिटर रिप्लेस करना, लगाना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो वन ऑफ द इंस्टॉलेशन में वो करते हैं कि इसको स्पेसर के साथ कनेक्ट करते हैं, और पर फेज ऑफ द कंडक्टर में स्पेसिंग के नतीजे में जो रेड का फेज की 4 तारें आपस में गुजर रही हैं, टू कंडक्टिंग प्लेट क्रिएट अ कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ एयर, जिसकी वजह से ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जिससे पर फेज के अंदर कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है, और उस मकसद के लिए हम स्पेसिंग क्रिएट करते हैं। इसी तरह पर फेज कैपेसिटेंस, पर फेज कैपेसिटेंस, पर फेज कैपेसिटेंस जब पूरी लाइन में क्रिएट होगी तो आपका इंडक्टिव लॉस इम्पैक्ट बिल्कुल नल एंड वाइट हो जाएगा, और आपको बगैर कैपेसिटर लगाए कैपेसिटेंस मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा था। कोई सवाल यहाँ तक किसी का है तो पूछो। सही सर। जी जनाब, ये चीज़ पढ़ाई जाती है असल में ट्रांसमिशन लाइन में हमें, और ये 1200 केवी का ये। मेमोरी रिफ्रेश हो गई सर, पुरानी बहुत बात है, मेमोरी रिफ्रेश हो गई। जी जी जनाब, ये मुझे मिल नहीं रहा था, ये 500 केवी के मुझे टेस्ट लाइन में मिला है। काफ़ी मैंने ढूंढी है लाइन, 11 केवी, 220, 32, 66, 500, 800, तो 1200 केवी में जाके मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला है। लेकिन पाकिस्तान में 500 केवी में अवेलेबल है, और 220 केवी में भी ये चीज़ अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि, कोई सवाल इसमें अब तक है आपके जहन में तो ठीक, नहीं तो फिर हम यहाँ से सेशन की तरफ दोबारा से चलते हैं। सर अगर ये सिंगल वायर हो तो उसमें किस तरह करेंगे? सिंगल वायर है तो फिर आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज़ भी जहन में रखें कि जो हमारी ये वो होती हैं ट्रांसमिशन लाइन, इनके सर ये जो एक्चुअली में सर ये जो आपने बताया कि स्पेसिंग करने से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से आपके जो सर ये इफेक्ट भी तो होता है ना ट्रांसमिशन लाइंस में कि ये सर ये तो ट्रांसमिशन को सर, हाँ उस इफेक्ट साइड उसका इफेक्ट भी होता है कि इसमें सर इतनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होना चाहिए।
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होना चाहिए किस चीज में? सर मतलब ट्रांसमिशन लाइंस में इफेक्ट्स जो होते हैं सर, जैसे कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट और जी जी, फ्रेंटी करंट इफेक्ट और इफेक्ट, जी जी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, जी जी। सर इसमें तो इसको कम किया जाता है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, क्योंकि सर फिर वो आप वो हो जाता सर ये 38 सर शायद 38 केवी पर सेंटीमीटर की वजह से फिर एयर आयोनाइज हो जाती है, इसलिए सर इसे रिड्यूस किया जाता है। वो एक अलग सिनेरियो है मेरे भाई। जो कोरोना इफेक्ट होता है ना, वो आपको नज़र भी आता है, वो एक आवाज़ आ रही होती है उसमें ज़्ज़, ये आ रही होती है ट्रांसमिशन लाइन में। तो वो जी इफेक्ट ये जी होता है कि एयर आयोनाइज हो रही होती है उन सस्पेंशन इंसुलेटर ऑफ द टावर्स के ऊपर, जिनके अंदर डस्ट यहाँ पे फंस जाती है, और बहुत टाइम से उन सस्पेंशन इंसुलेटर की डिस्क की सफाई नहीं हुई होती। तो उस एंड ऑफ एड्जेस के ऊपर आपकी डस्ट जब जमी हुई होती है, तो एयर आयोनाइज हो रही होती है, और एयर आयोनाइज होने के नतीजे में आपको इलेक्ट्रिसिटी का लॉस मिलता है, और एयर इलेक्ट्रिसिटी के लॉस के नतीजे में वो इलेक्ट्रिसिटी जो इस लॉस में ज़ाया हो रही होती है, वो हमिंग की आवाज़ से आपके सामने आ रही होती है, जो कि का साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के ऊपर, जो आप अक्सर देखते सुनते होंगे। तो ये वो उस इफेक्ट की बात है, और जो आप कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही। सही है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये एक रियलिटी है, जो आप देखेंगे। ये 4 केबल हमने देखे हैं कनेक्ट हुए हुए भाई, ये जो चल रहे हैं बाईपास के ऊपर तारे हमारी 500 केवी की डबल सर्किट में चल रही है। इवन ये चीज आपको याद देखा है आपने ये? जी सर, ये स्पेसर वगैरह तो देखे देखे हैं सर। तो इसकी एक हकीकत है, और इसकी वजह यह है कि इससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है आपका। कैपेसिटर इंडिविजुअली कनेक्ट करने के नतीजे के बगैर ही वोल्टेज रेगुलेशन इससे इम्प्रूव होती है, शंट कैपेसिटेंस ओवरकम होती है, और इसके फायदे हैं बड़े। तो उस मकसद के लिए हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक लड़के ने सवाल किया था यहाँ पे कि अगर मैं उसका जवाब दे दूँ, फिर हम सेशन को एंड करने की तरफ चलेंगे, कि ये जो केबल्स लगे हुए हैं ना, अगर ये 4 ना हो, 3 हो, तो वो लाइन जो है वो 500 केवी की नहीं होगी, बल्कि वो 220 केवी की होगी। अगर वो केबल 3 नहीं 2 हुए, तो फिर वो जो सर्किट होगा वो 132 केवी का होगा। और अगर वो जो केबल है वो 2 ना हुए बल्कि 1 हुआ, तो वो फिर जो केबल ऑफ द सर्किट है वो 660 केवी या 11 केवी का होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें सवाल ये नहीं किया था, लेकिन मैंने फिर उसके हवाले से एक अलग चीज़ बता दी जो कि नॉलेज वाइज है। सवाल ये किया था उसने कि अगर यहाँ पे ये डबल केबल ही ना हो, 2 भी ना हो, 3 भी ना हो, 4 भी ना हो, बल्कि एक गुजर हो, तो फिर कैपेसिटर कैसे इंप्रूव होगा? तो फिर आपको टावर पे कैपेसिटर लगाना पड़ता है। ऐसा ही कहीं लगा हुआ है क्या? ये बिल्कुल लगा हुआ है। 4 के चुरंगी का जो टावर है ना, 4 के चुरंगी का टावर है, उसके साथ बिल्कुल सामने एक टावर है, उसके ऊपर यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, और उसकी तारें मिलके एक केबल, दूसरी केबल और तीसरी केबल पे पैरेलली लगी हुई हैं पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। तो जब इंडिविजुअल केबल आप कनेक्ट करते हैं सिंगल सिंगल सर्किट्स के ऊपर, देखें डबल सर्किट है, 1 2 3 यहाँ पे, और एक 1 2 3 यहाँ पे। ये डबल सर्किट लगाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई ना कोई फॉल्ट इन लाइन में हो जाए, इस सर्किट को बंद कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाए, और अगर यहाँ कोई फॉल्ट या मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से की जाए। तो ये डबल सर्किट का फायदा ये होता है। ओके, तो अगर डबल सर्किट जा रहा है और इनमें सिंगल सिंगल तार जा रही है, तो आप कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं 2, एक यहाँ पे तार, एक यहाँ पे, क्या वो 3 फेज का कैपेसिटर होता है, जो कि तकरीबन 1 फीट लंबा कैपेसिटर होता है। और उसका डाया अगर ले लें, तो वो डाया कुछ 12 mm² का डाया होता है वो। ठीक है। और 12 mm² नहीं, 100 mm² का डाया होता है। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट की जाती है, एक सर्किट में, और इस तरह एक सर्किट में यहाँ पे। तो इस तरीके से पावर फैक्टर इंप्रूव किया जाएगा सिंगल केबल ऑफ द सर्किट के अंदर। जिसने मेरे ख्याल में सवाल पूछा था, होपफुली मैंने जवाब दे दिया होगा। और अगर कोई फर्दर सवाल है किसी के जहन में, तो पूछ सकते हैं आप। आई विल आंसर द काइंड ऑफ सर ये क्वेश्चन। कैपेसिटर सीरीज में होते हैं या सर पैरेलल में होते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन के, सर जो 4 के चुरंगी पैरेलल में पे होते लगे हैं, हुए हैं उसके पैरेलल। आगे? मैंने जी अभी बताया था पैरेलल में लगते हैं। मैंने यही तो बताया, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों लग के एक कैपेसिटर से निकल के आते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, और ये पैरेलल में लगते हैं। ठीक है, सीरीज में नहीं लगते। यहाँ सीरीज में लगाना नामुमकिन है कैपेसिटर। सीरीज का मतलब होगा केबल को यहाँ पे ब्रेक करके बीच में आपको वो लगाना पड़ जाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैपेसिटर लगाना यहाँ पे। तो पैरेलल में लगाना आसान है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है बनस्बत सीरीज के। ठीक है। और कोई सवाल अच्छा है सर, किसी? ये जो इस जी। सर ये स्पेसर वाले जो कैपेसिटेंस वाले आपने बताया था सर, ये रिएक्टेंस खत्म करने के लिए या फिर ये पावर फैक्टर वगैरह के लिए?
इन दोनों का एक ही मतलब है, रिएक्टेंस, शंट रिएक्टेंस को खत्म करने के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, क्योंकि शंट रिएक्टेंस कम होगी तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा फायदा ये होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन कम होती है शंट कैपेसिटेंस कम होने के नतीजे में और पावर फैक्टर इंप्रूव होने के नतीजे में। ठीक है जी, ठीक है सर। और कोई सवाल किसी का यहाँ पर है तो पूछें। जी जनाब, तो फर्दर हम इस स्लाइड पे बात करते हैं जो कि हमारी ये वाली थी, तो इसको एक नज़र देखें। मैं ज़रा कुछ 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर दोबारा हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। ये स्लाइड ज़रा अच्छी तरह देखें और इसे पढ़ें, इसके सेक्शंस को देखें और उनमें जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगे हुए हैं बीच में मैंने जो बताए थे आपको उसको देखें, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेशन से यूटिलाइजेशन के एंड तक जा रही है उसे देखें, और यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन हुई है उसके मुताबिक क्या ये 6 के 6 सेक्शन ऐसे बने हुए हैं जो आपस में इंडिविजुअली इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसपोर्टेशन करने का बाइस बन रहे हैं, और उनमें जोन के प्रोटेक्शन की प्रॉपर लेबलिंग के नतीजे में हम यहाँ पे फॉल्ट को डिटेक्ट करना आसान भी होता है। इन सब चीज़ों को ज़रा गौर से देखें। मैं यहाँ पे 5 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आखिरी सेशन है, सेशन दोबारा कंटिन्यू उसके बाद नहीं होगा, और अगर और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं सेशन के हवाले से।